یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع پرشاسن مظفر نگر نے مظفر نگر کی نمائش 2021 میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا۔ ہم شکر گزار ہیں مظفر نگر کے سماجی کارکن و ادب نواز شخصیت الحاج آصف راہی صاحب کے، ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر خورشید حیدر مظفر نگری صاحب کا، جن کی دعوت پر ہم نے یہ مشاعرہ کور کیا۔ میرا ایک شعر ہے کہ مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، ظالم کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے، گو وقت نے ایسے بھی مواقع ہمیں بخشے، ہم پھر بھی بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھے۔ وسیم صاحب کو سنیے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، میری گزارش ہے کہ آپ انہیں سنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات گرامی، آئیے اب غزل کے تاجدار سے ملاقات کریں۔ غزل کے تاجدار ہمارے مشاعرے کی آبرو، ہمارے اردو تہذیب کے سفیر، اور یوں کہوں تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے اور پوری دنیا اگر یہ جاننا چاہے کہ غزل اور اردو ادب کی تہذیب کیا ہے، تو اس تہذیب کو اگر پریکٹیکل طور پہ کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ وہ حضرت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے ایک بار ملاقات کر لے، اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ اردو تہذیب کیا ہے۔ آئیے اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا، اور پھر انہیں آواز دیتا ہوں۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں ہم سب کے صدر علی وقار، مشاعرے کی آبرو، اردو دنیا کے تاجدار، غزل کے شہنشاہ حضرت پروفیسر وسیم بریلوی کو۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نوجوان لوگ کھڑے ہو کر بھی کلیپنگ کر سکتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے صدر علی وقار حضرت پروفیسر وسیم بریلوی۔ بہت شکریہ۔ میں تو اتنی تعریف یہاں ہو گئی کہ میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میں اس کا اہل تو کسی طرح بھی نہیں، لیکن صرف محبت ہے آپ حضرات کی، تمام شعراء حضرات کی، کہ جو احترام وہ دیتے ہیں، جو عزت وہ دیتے ہیں۔ بڑے مشکل وقتوں میں آپ جمع ہیں، باہر جیسی ہوائیں چل رہی ہیں، اس میں مشاعرے کا اہتمام کرنا اور اتنے کامیاب مشاعرے کا اہتمام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ سارا ضلع انتظامیہ یہاں کے منتظمین، اور خاص طریقے سے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آج کی اس محفل کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ لوگ شریک ہیں، بلکہ اردو شعر و ادب کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آج کی محفل میں۔ اس کے لیے میں بطور خاص آپ سب کو بدائی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور تھوڑا وقت ملا ہے، تو جہاں جہاں سے شعر یاد آئیں گے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ آپ نے جس طرح مطلع سنا، مجھے 40 سال پہلے کا مظفر نگر یاد آ گیا۔ کس طرح تربیت ہوئی آپ کی محفلوں میں۔ ہماری ابتدائی دور تھا، 20 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ایک مصرع پڑھتے تھے، اور جس طریقے سے پذیرائی ملتی تھی وہی ہمارا زیادہ سفر طے کرتی تھی اور مستقبل طے کرتی تھی۔ آج جس طرح آپ نے مطلع سنا، جی خوش ہوا۔ پھر پڑھتا ہوں مطلع کہ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ اور میاں شعر سنیے کہ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، ارے بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ اور اب شعر تو میں بہت نوازش، بہت شکریہ ہمارے
आलोक जी बैठे हुए हैं, ये बड़े बाज़ौक़ हैं, ये क्या बल्कि इनका पूरा परिवार बहुत बाज़ौक़ है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर की महफिल, ज़ाहिर है कि यहाँ पर देवबंद से भी हज़रात होंगे, सहारनपुर के भी, यानी एक तरीके से इत्र है, मैं समझता हूँ इस इलाके का ये अदबी इत्र है जो आज की इस महफिल के अंदर मौजूद है, जिसको मुशायरे की महफिल कही है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि आसमां बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब शेर सुनिए कि शोर होता था, मैं सुनिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। वाह, इस शेर की रूह तक था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। वाह 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 वाह। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे, तू ही चाहे, प्रेम जी सुनिए, कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा करे कि आप लोग मेरा साथ दे सकें, कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, अरे मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता। वाह 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 वाह। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। और मुझे ख़ास तरीके से याद दिलाया गया, ये शेर पढ़ने के लिए मैं ज़रूर पेश करूँगा, इसलिए कि जिस मकसद को लेकर ये मुशायरा किया गया है और इस मुश्किल मौसम में इस मुशायरे का इनेकाद हुआ, तो मैं बात यहीं से शुरू किए देता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक, प्रदीप जी, वो मेरे चेहरे तक, देखिएगा किस तरीके से बात को कहने की कोशिश की गई है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। वाह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, अरे मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वाह 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 वाह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और फिर वो शेर भी पेश किए देता हूँ जिसके मुलाहिजा फरमाइए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वाह। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह वाह वाह। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मतलब सुनिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वाह वाह वाह। माफ़ कीजिएगा, ये शेर मैंने बड़ा कीमती सुनाया है आपको, आपकी तवज्जो और चाहता हूँ। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और अब आइए शेर में अपने आप को पढ़िए, पेश करता हूँ कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। फैसला लिखा फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। अदालत में सफाई देंगे, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। और सुनिए शेर और सुनिए जी सर, मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। एक नया शेर बड़ा है, इसके अंदर मुलाजा कीजिए। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें,
मुजफ्फर नगर सुने और लौटाए मेरा शेर। तेरे चेहरे तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। मिल जाए हमारी आंखें, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर कभी हम न तुझे गैर दिखाई देंगे। फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। वाह वाह और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से, मेरे ख्याल में 3 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं उसके अंदर 3-4 शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब एक शेर सुन लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूँ, सुनिए ये शेर। मुलाहिजा फरमाइए कि पुरखों की, जी सर, जी सर, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? मुजफ्फरनगर, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। वाह 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 पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? वाह। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं। वाह। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। और एक नया शेर और सुनिए आलोक जी, आप तो बहुत बाखबर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप तक आप सारी चीज़ें तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहुँचा होगा। पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे, आज का शेर सुना रहा हूँ दोस्तों सर, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और ये गजल मैं आपको सुनाता हूँ, ताज़ा गजल है, इस वक्त जो फिर दस्तक हुई है एक बदनसीब मौसम की, तो उसके पेश नज़र ये मार्च 2021 में कहा गया था शेर, लेकिन अब फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत है। मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, बतौर ख़ास मुजफ्फरनगर की नज़र है मतला कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से, ये गजल मेरी जी लगा के सुन लो, मैं भी जी लगा कर आपको सुनाता हूँ, आप शिरकत फरमाइए। आंखों को मूंद लेने से खतरा देखिए क्या मतलब कह रहा हूँ, इसको महसूस कीजिए कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न। जिंदाबाद मुजफ्फरनगर, जिंदाबाद। आपने मेरा जी खुश कर दिया, मेरी रूह खुश हो गई आपको, बड़ी नवाजी। बहुत सर, और कुछ शेर और सुना दीजिए सर। अभी सर है गजल पूरी सुनाऊं। आप इत्मीनान रखिए, अभी 5 मिनट है हमारे टाइम में। आंखों को ये तो मतलब पड़ा, मैं इसकी पूरी गजल तो सुन लीजिए। आंखों, बैठ जाइए सुन ली, बैठी। आंखों को देखिए, उसका तासुर खत्म हो जाएगा। बहुत कीमती गजल सुना रहा हूँ आपको, नई गजल। जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। क्या कहना? बैठ जाओ मियाँ प्लीज, बैठ। वो देखना पड़ेगा। मैं आगे ऐसे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप बैठ नहीं जाएंगे। भैया बैठ जाओ प्लीज, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से, जो जहां है वहीं बैठ जाए जल्दी से। बहुत कीमती शेर सुना रहा हूँ, सुनिए जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा कि जो देखा न जाएगा। और सुनिए मियाँ शेर के पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। यार मिसरा उठाओ। पैमाना भर चला है पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। मोहब्बत के सब्र का, सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। वाह 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 वाह। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। देखिए ऊपर वाला दे देता है, हमारी क्या औकात है कि हम शेर लिख सकते हैं, मगर देखिए कितना कहा गया है, मगर फिर भी गोशा निकलता है। गोशा निकालने की ये हमारे
फर्रुख मियाँ का बड़ा पसंदीदा शेर है सर, अभी सर, बधाइयों में, सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी मोहब्बत से सुने जिस तरीके से इन्होंने उसको महफूज किया है सर, सर। कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। शोहरा जरा सुने, एक पहलू है कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, जलना है कब्र पर आहा, आहा, कि जलाना है बज़्म में। वाह 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 वाह, जलना है कब्र पर कि जलाना है बस, कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। वाह 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 वाह, कि जलाना है कब्र वाह 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 वाह, सर सर सर, जलना क्या है कहना, क्या कब्र पर, कि कहना, जलाना है बज़्म में, आहा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। पूछा न। देखिए गजल अजीब व गरीब चीज़ें अपने मौजू के लिए किस किस तरीके से अपने आहंग बदलती है। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। सर। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, क्या कहना, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। अब शेर सुनिए कि ये कह के भिड़ गए हैं आहा, सभागार के किवाड़। ये कह के, मैंने कहा गजल क्या जालिम चीज है कि मौजू के लिए किस तरह से आहंग बदलती है। पेश जी, करता हूं, जी, जी। ये ये भी कह किसी के- चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। सर जिंदाबाद जिंदाबाद, मुशायरा हो गया, वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके शहर की प्रथम नागरिक मोहतरमा अंजू अग्रवाल साहिबा, हमारे सीडीओ साहब जनाब आलोक यादव जी, एडीएम साहब नरेंद्र बहादुर सिंह साहब, सिटी मजिस्ट्रेट जनाब अनूप कुमार जी, और मुशायरे के तमाम मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।